Yes, student. Today we are starting new chapter of physics, that is electricity. And in this chapter, there are two important chapters in physics in which you have to practice lot of numericals. First is electricity and then light. First topic of electricity is electric charge, denoted by Q, and formula is Q is equals to N. When in chemistry we study that whenever a body loses or gains, then it acquires a charge. In 9th you have studied it. If it is losing electrons, positive charge is there, and if it is gaining electron, negative charge is there. So whatever electrons body is losing or gaining, that is the number, and what is E? Charge on electron. Q is equals to Ne. N is number of electron, E is charge on electron, and minimum charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Coulomb is SI unit of electric charge. In short, we write it C. So you may get numericals in this formula also. Q is equals to Ne. Charge is given to you. This numerical is given in NCERT. Also calculate number of electrons in 1 coulomb of charge. So here you will write 1. E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Always you have to remember that charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. Then second topic is electric current. Electric current is denoted by I. Flow of electric charge is known as electric current. I is equals to Q upon T. Q is charge, T is time, and every time you will use here SI units. Means time you will take in seconds. If time is given in minutes, you will convert it in seconds by multiply by 60. Sometimes you may get time in hours also. So you convert always time in SI units, that is सेकेंड. जो भी आपको बेटा यूनिट्स और कुछ दिए हुए हैं आप उसको चेंज करेंगे. टाइम को हमेशा सेकंड में लेंगे, चार्ज को हमेशा कूलम्स में ही लेना. एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज क्यू? Ne. So you will get one new formula to calculate current. I is equals to Ne upon T. N is number of electrons, E is charge on electron, and 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. Time is in second. Define electric current. Define SI unit of current. अगर ये पूछते हैं आपसे कि SI unit को define करिए, first you must know that what is SI unit of electric current. SI unit of electric current is ampere, denoted by capital A. 1 ampere is equals to 1 coulomb upon 1 second. 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 coulomb charge अगर किसी बॉडी से फ्लो करता है 1 सेकेंड के लिए, तो जो करंट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 1 एम्पियर. और एम्पियर को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. वायर्स. इसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ मैंने एमीटर लिखा है. एमीटर इज अ डिवाइस और सिंबल जो है वो ए है. इस तरीके से सर्कल बना देते हैं. इस चैप्टर में अभी जब आप आगे और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपके सिंबल्स भी आएंगे. व्हाट इज द सिंबल ऑफ एमीटर, वोल्ट मीटर, रेसिस्टेंस. एंड स्टूडेंट्स नाउ हमने इसमें आगे लिखा है जो पॉइंट इन सीरीज. व्हाट डज इट मीन? आप किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एमीटर को किस तरीके से अटैच करते हैं? सीरीज में करते हैं. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस दो होते हैं. अभी आप जब रेसिस्टेंस वाले टॉपिक पर आएंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा. इस टॉपिक में केवल अभी आप मिनिमम इतना लर्न करेंगे कि इसको आप सीरीज में कंबाइन करते हैं. और जो एमीटर होता है, एन आइडियल एमीटर शुड हैव वेरी लो रेसिस्टेंस. इसका जो अपना रेसिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए. अभी जब हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाएंगे और उसका अपना जो रेसिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, इनफाइनाइट होता है आइडियल के लिए. अभी केवल क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं, 9th में आप सीरीज पैरेलल अभी कुछ नहीं पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस यू डोंट नो,
इस टॉपिक के बाद हमारा रेसिस्टेंस स्टार्ट होगा, तब आपको रेसिस्टेंस भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप इसमें परेशान ना हो, सीरीज वर्ड भी आपको क्लियर हो जाएगा। 2 points you will remember that electric current is measured with the help of ammeter and it is combined in series and it must have very low resistance. Then third topic today that we have to discuss is electric potential. पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, कैपिटल ये हमारा कैपिटल V है। स्मॉल v अगर हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 9th में आपने उसको वेलोसिटी कहा था, ये आपका कैपिटल V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन टू कैरी ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी आता है, जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा, ए और बी के बीच में। अगर आप चार्ज को इन दो फिक्स पॉइंट के बीच में कैरी कर रहे हैं, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और अगर आप किसी चार्ज को हम स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, करंट को स्मॉल आई से भी कर सकते हैं, सीनियर क्लासेस कई जगह आपको स्मॉल से भी शो करते हैं। तो V is equals to W upon Q means work done to carry a charge from infinity to any point in the circuit। अगर आप infinity से चार्ज को कैरी करते हैं तो दैट इज पोटेंशियल, और अगर आप उस चार्ज को दो फिक्स पॉइंट के बीच में करते हैं देन इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। वर्क हमेशा जूल में लेंगे, क्यू चार्ज है हमेशा कूलम्ब्स में होंगे, और बेटा क्यू का फॉर्मूला एनी यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। हमेशा रिमेंबर रखिए कि अगर आपको रिमेंबर करना है कि अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो Q इज इक्वल्स टू NE। नाउ व्हाट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज वोल्ट, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। वोल्ट एम्पियर भी साइंटिस्ट के नाम की बात की यूनिट है, ऐसे ही वोल्ट भी साइंटिस्ट के नाम के बाद ही है। 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। मीन्स अगर हमारा ये चार्ज 1 जूल का है और इसको कैरी करने में हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 1 वोल्ट, जिसे हम घरों में नॉर्मली वोल्टेज वर्ड यूज़ करते हैं। 220 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में, वोल्टेज बोल देते हैं, करेक्ट वर्ड इज वोल्ट। जैसे हम लोग हैं 220 वोल्ट को सबसे अच्छा माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे हम ये 3 अगेन वी आर रिवाइजिंग दीज 3 टॉपिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है तीनों का आपको, तीनों की SI यूनिट, तीनों के फॉर्मूलेस। एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, यूनिट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस।